آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کا کیس، سپریم کورٹ نے قانونی حیثیت پر سوال اٹھا دیے، طریقہ کار پر چیف جسٹس کا اظہار برہمی، ریمارکس دیے، اسسٹنٹ کمشنر کا تقرر بھی ایسے نہیں ہوتا جیسے آپ نے کیا، آرمی چیف کو شٹل کاک بنا دیا، سفارش نئی تقرری کی تھی لیکن نوٹیفیکیشن توسیع کا کر دیا، سمری تیار کرنے والوں کی ڈگریاں چیک کروائیں گے۔ آرمی چیف کی توسیع کا معاملہ حکومت کل تک حل کر لے ورنہ آئین کے مطابق اپنی ذمہ داری نبھائیں گے۔ چیف جسٹس کی مہلت، ریمارکس دیے، ماضی میں 5 سے 6 جرنیل خود کو 10 سال ایکسٹینشن دیتے رہے، پہلے یہ سوال اٹھایا نہیں گیا، اب اٹھا ہے تو اس کے تمام قانونی پہلوؤں کا جائزہ لیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت ہنگامی اجلاس، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی بھی شرکت، سپریم کورٹ کی کارروائی، چیف جسٹس کی مہلت اور آرمی چیف کی توسیع کے معاملے پر مشاورت، عدالتی اعتراضات دور کرنے سے متعلق ڈرافٹ تیار۔ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر کی گئی، وزیر اعظم عمران خان کی سینئر وزراء سے ملاقات میں گفتگو، واضح کر دیا حکومت پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ آرمی چیف کو لگانا یہ پرائم منسٹر کا حق ہے، اس میں عدالت بے دخل نہیں دے سکتی، عدالت بہت بڑا ادارہ ہے، محترم ادارہ ہے، پر پارلیمنٹری ساورنٹی کا جو پرنسپل ہے وہ سپریم ہے۔ معروف قانون دان چودھری اعتزاز احسن نے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کو قانون کے مطابق قرار دے دیا، کہتے ہیں تقرری وزیر اعظم کا اختیار ہے، عدالت مداخلت نہیں کر سکتی، اگر وزیر اعظم کی ایڈوائس پر صدر نے آرمی چیف کو توسیع دی ہے تو کوئی قانونی قباحت نہیں۔ مشرف غداری کیس میں وفاق کی درخواست منظور، اسلام آباد ہائی کورٹ نے خصوصی عدالت کو فیصلہ سنانے سے روک دیا، فیصلہ کل سنایا جانا تھا، وفاق 5 دسمبر تک پروسیکیوشن ٹیم تشکیل دے، مشرف کے وکیل سلمان صفدر کو بھی سنا جائے، ہائی کورٹ کا حکم۔ بیرسٹر فروغ نسیم کا بطور وزیر قانون استعفیٰ منظور، کابینہ ڈویژن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، استعفیٰ منظوری کا اطلاق 26 نومبر سے ہوگا۔ جنرل ندیم رضا چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی بن گئے، آئی ایس پی آر کے مطابق جنرل ندیم رضا نے اپنا نیا عہدہ سنبھال لیا، جنرل ندیم رضا نے عہدے کا چارج جوائنٹ اسٹاف ہیڈ کوارٹرز میں لیا۔ ایم پی ایم رہنما علی رضا عابدی قتل کیس کی سماعت، انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی، ملزمان کا صحت جرم سے انکار، عدالت نے گواہوں کو طلب کر لیا۔ میں تو چاہوں گا کہ وہ امریکہ میں ایک ہی جو اسپیشلسٹ ہاسپٹل ہے وہاں جا کے اپنی جو ملٹیپل ایلمنٹس ہیں وہ ان کا علاج کروا سکیں۔ بیمار نواز شریف علاج کے لیے لندن میں موجود، مرض کی تشخیص نہ ہو سکی، اب امریکہ بھیجنے کی تیاری، حسین نواز کہتے ہیں والد سے علاج کے لیے امریکہ جانے کی بات کی ہے، لندن کے ڈاکٹرز نے ابھی تک کوئی رائے نہیں دی، قوم سے نواز شریف کے لیے دعاؤں کی بھی اپیل۔ چودھری شوگر ملز کیس، منی لانڈرنگ میں گرفتار نواز شریف کے بھتیجے یوسف عباس نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست ضمانت دائر کر دی، موقف اپنایا، نیب کی حراست میں 48 دن رہا لیکن کوئی شواہد عدالت میں پیش نہیں کیے گئے، درخواست ضمانت بعد از گرفتاری قبول کی جائے۔ ایل این جی کیس میں گرفتار مفتاح اسماعیل نے بھی ضمانت کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ مانسہرہ انٹرچینج کے قریب جمعیت علماء اسلام کے رہنما مفتی کفایت اللہ پر حملہ، نامعلوم افراد کا مفتی کفایت، 2 بیٹوں اور ایک ساتھی پر تشدد، ملزمان فرار ہو گئے، زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا، واقعے کا مقدمہ درج۔ کراچی گلشن اقبال کے اسپتال میں وارڈ بوائے کی درندگی، آئی سی یو میں معذور خاتون سے زیادتی کی کوشش، شکایت پر پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا، وارڈ بوائے کا اعتراف جرم۔
वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत पब्लिक सेफ्टी कमीशन का इजलास, पुलिस फायरिंग से कत्ल शहरी नबील से मुतालिक केस पर मुशावरत। वज़ीर आला सिंध ने पुलिस की तरबियत की हिदायत कर दी। कराची में ट्रैफिक पुलिस एहलकार से खातून की बदतमीजी, पहले सिग्नल तोड़ा, चालान करने के लिए एहलकार ने रोका तो मुगल्लिजात बकी। वीडियो वायरल हुई तो मुकदमा दर्ज, बदतमीज खातून ताहाल गिरफ्तार न हो सकी। कराची में डेंगू से एक और हलाकत, नाज़माबाद की रिहायशी 26 साला मरियम निजी अस्पताल में दम तोड़ गई। रवां साल डेंगू से जाँ बाग अफराद की तादाद 41 हो गई। लाड़काना के इलाके नौडेरों में आवारा कुत्तों की बहुतात, स्कूल जाते हुए बच्चे को काट लिया। राहगीरों ने बच्चे को बचाया, अस्पताल मुंतकिल। आपने मुलाहजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में बड़े केस की समाअत से। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने आर्मी चीफ एक्सटेंशन केस की समाअत की। अदालत ने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की नई समरी में भी गलतियों की निशानदही कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इस तरह तो असिस्टेंट कमिश्नर का तकर्रुर नहीं होता जैसे आपने किया। आपने आर्मी चीफ को शटल कॉक बना दिया। सिफारिश नई तकर्रुरी की थी लेकिन नोटिफिकेशन तौसी का कर दिया। किसी ने समरी और नोटिफिकेशन पढ़ने की जहमत तक नहीं की। समरी तैयार करने वालों की डिग्रियां भी चेक करवाएं। हुकूमत कल तक इस मामले का हल निकाले। कल के बाद वक्त नहीं रह जाएगा, फिर फैसला करना पड़ेगा। अगर मामला गैर कानूनी हुआ तो फिर जिम्मेदारी हम पर आ जाएगी। समाअत कल फिर होगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तौसीह के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। अदालत ने 3 अहम सवाल उठा दिए। तौसीह की आईनी हैसियत क्या है, तौसीह देने की वजह क्या है, तौसीह देने का तरीका कार क्या है। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने तौसीह की नई समरी में भी गलतियों की निशानदेही करते हुए रिमार्क दिए कि आर्टिकल 255 उन लोगों के लिए है जो सर्विस से निकाले या रिटायर्ड हो चुके हैं। आप गलत तरमीम करके ले आए हैं। कल के नोटिफिकेशन में 3 साल की मुद्दत कैसे लिखी गई? वफाकी हुकूमत आर्मी से मुतालिक कवायद और जवाबित बना सकती है। अदालत ने तौसीह के तरीक़ेकार पर भी बरहमी का इजहार किया। चीफ जस्टिस ने कहा, इस तरह तो असिस्टेंट कमिश्नर का तकर्रुर नहीं होता जैसे आपने किया। आपने आर्मी चीफ को शटल कॉक बना दिया। सिफारिश नई तकर्री की थी लेकिन नोटिफिकेशन तौसीह का कर दिया। किसी ने समरी और नोटिफिकेशन पढ़ने की भी जहमत नहीं की। समरी तैयार करने वालों की डिग्रियां भी चेक करवाएं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि आर्टिकल 243 में तैनाती की मुद्दत की बात की गई है। ये आर्टिकल तो मराहत और दीगर मामलात से मुतालिक है। आर्मी चीफ कितने अरसे के लिए तैनात होते हैं? क्या आर्मी चीफ हाजिर सर्विस अफसर बन सकता है या रिटायर्ड जनरल भी? कवायद को देखना जरूरी है। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि तौसीह के नोटिफिकेशन पर मुतअद्दिद वज़रा के जवाब का इंतजार था। जवाब न आए तो कवायद के मुताबिक इसे हाँ ही तस्वुर किया जाता है। अटॉर्नी जनरल के जवाब पर चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि ऐसा सिर्फ उस सूरत में समझा जाता है जो मुकर्ररा मुद्दत जवाब देना हो। आपने मुद्दत मुकर्रर नहीं की थी, लिहाजा आपके सवाल का जवाब आज भी हाँ तस्वर नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस ने कहा कि असर नौ और तौसीह से मुतालिक कानून दिखाएं जिस पर अमल किया। तसल्ली से सबको सुनेंगे, कोई जल्दी नहीं। पहले ये सवाल उठाया नहीं गया, अब उठा है तो उसके तमाम कानूनी पहलुओं का जायजा लेंगे। माजी में 5-6 जर्नैल खुद को 10-10 साल एक्सटेंशन देते रहे। तवील समाअत के बाद अदालत ने हुकूमत को आर्मी चीफ की तौसीह का मामला हल करने के लिए 1 रोज की मोहलत देते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी। अदील सरफराज, आज न्यूज, इस्लामाबाद। हुकूमत ने आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से अदालती एतराज़ात दूर करने से मुतालिक ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ जिसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी शिरकत की। वज़ीर आज़म ने इजलास में कानूनी टीम को मुकम्मल तैयारी के साथ सुप्रीम कोर्ट पेश होने की हिदायत की है। वज़ीर आज़म का कहना है कि अदालतों का एहतराम करते हैं, कोई गैर आइनी इक़दाम नहीं उठाएंगे। इजलास में मज़ीद क्या मुशावरत हो इसके बारे में आपको बता रहे हैं कि एतराज़ात दूर करने से मुतालिक ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ जिसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी शिरकत की। वज़ीर आज़म ने इजलास में कानूनी टीम को मुकम्मल तैयारी के साथ सुप्रीम कोर्ट में पेश होने की हिदायत की है। वज़ीर
आजम का कहना है कि अदालतों का एहतराम करते हैं, कोई गैर आईनी इकदाम नहीं उठाएंगे। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। हुकूमत ने आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से अदालती एतराज़ात दूर करने से मुतालिक ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। वजीर आजम की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ, जिसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी शिरकत की। वजीर आजम ने इजलास में कानूनी टीम को मुकम्मल तैयारी के साथ सुप्रीम कोर्ट पेश होने की हिदायत की है। वजीर आजम का कहना है कि अदालतों का एहतराम करते हैं, कोई गैर आईनी इकदाम नहीं उठाएंगे। इजलास में क्या मुशावरत की गई है, इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। जी हाँ, हुकूमत ने आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से अदालती एतराज़ात दूर करने से मुतालिक ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ, जिसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी शिरकत की। वज़ीर आज़म ने इजलास में कानूनी टीम को मुकम्मल तैयारी के साथ सुप्रीम कोर्ट में पेश होने के लिए हिदायत की है। इस बारे में मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं आई न्यूज़ के नुमाइंदे रेहान शेख से। जी रेहान शेख, क्या आज इस इजलास में तमाम तर सूरत हाल सामने आई है? जी बिल्कुल, देखिए वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत अहम तीन मुशावरती इजलास हुआ, जिसमें लीगल टीम के अलावा वफाकी काबीना के सीनियर मेंबरान और वज़रा शामिल थे, और इसके साथ साथ आर्मी चीफ ने भी खुसूसी तौर पर इस इजलास में शिरकत की। और इजलास में सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत केसेस से मुतल्लिक मुशावरत की गई, जबकि अदालती एतराज़ात दूर करने से मुतल्लिक ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया गया है, और वफाकी काबीना से सर्कुलेशन असम्बली के जरिए मंजूरी किए जाने का भी वो ड्राफ्ट पर इम्कान है। और उसके साथ ही वज़ीर आज़म इमरान खान ने कल 6 बजे यानी कल शाम को 6 बजे पार्लियामेंट हाउस में अहम तरीन एक पार्लियामेंट्री पार्टी का इजलास भी तलब कर लिया है, जिसमें तमाम अरकान असम्बली और सेनेटर्स को भी खुसूसी तौर पर शिरकत की दावत दी गई है। तकरीबन 2-2.5 घंटे के करीब इजलास चला, जो आज वज़ीर आज़म हाउस में वज़ीर आज़म ऑफिस में हुआ, और इसमें आज अदालत उज़्मा में जो आज केस की प्रोसीडिंग हुई उस पर तफसीली गौर किया गया। बाबर रवान और लीगल टीम के जो मेंबर्स थे उन्होंने वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी, और वज़ीर आज़म का इस इजलास में यही कहना था कि कोई गैर कानूनी और कोई गैर आईनी इक़दाम नहीं उठाएंगे, अदालतों का एहतराम करते हैं। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के हवाले से उन्होंने हदायत की है लीगल टीम को कल अपने मुकम्मल होमवर्क के साथ सुप्रीम कोर्ट जाए। ठीक है, रेहान शेख अपडेट करें, आपका शुक्रिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी सिक्योरिटी सूरत हाल देख कर की हुकूमत पाक फौज के साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म इमरान खान से काबीना के सीनियर वज़रा ने मुलाकात की, जिसमें मौजूदा सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी के मामले समेत मौजूदा सूरत हाल पर भी मुशावरत की गई। मारूफ कानूनदान एतजाज हसन ने आर्मी चीफ की एक्सटेंशन को कानून के मुताबिक करार दे दिया। कहते हैं आर्मी चीफ की तकर्री वज़ीर आज़म का इख्तियार है, इसमें अदालत मुदाखलत नहीं कर सकती। मुल्की हालात खराब है, लेकिन मामलात मार्शल लॉ की तरफ जाता नहीं देख रहा। मैं समझता हूँ कि आर्मी चीफ को लगाना ये प्राइम मिनिस्टर का हक है। पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी का ये प्रिंसिपल है, इसमें अदालत बेदखल नहीं दे सकती। अदालत बहुत बड़ा अदारा है, मोहतरम अदारा है, पर पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी का जो प्रिंसिपल है वो सुप्रीम है। तो आर्टिकल 243 के तहत सदर सिर्फ उसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगा सकता है, जिसकी तजवीज़ प्राइम मिनिस्टर की। मार्शल लॉ की तरफ जा रहे हैं या इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं? नहीं, मार्शल लॉ की तरफ इंशाल्लाह नहीं जाते। आइन और इदारों के साथ ऐसे मजाक की मिसाल नहीं मिलती। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक भी बोल पड़े। बयान में कहा हुकूमत की नालायकी रोज़े अव्वल से वाज़ेह थी, आज दिन भर के वाक़यात ने साबित कर दिया कि ये महा नालायक हैं। मुल्क की बागडोर ऐसे गैर संजीदा लोगों के हाथों में होना अफसोसनाक है। उनका कहना था कि मुशर्रफ को बचाने की कोशिश में हुकूमत का असल चेहरा बेनकाब हो गया। हुकूमत की बेसाखियाँ टूटने वाली हैं। सियासी स्मोक की यही सूरत हाल रही तो डर है कोई हादसा ना हो जाए। फरूक नसीम का बतौर वजीर कानून इस्तीफा मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने वजीर आजम की तजवीज़ पर इस्तीफा मंजूर किया। इस्तीफे की मंजूरी का इतलाक 26 नवंबर से होगा। अहम खबर है जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं। फरूक नसीम का बतौर वजीर कानून इस्तीफा मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने वजीर आजम की तजवीज़ पर इस्तीफा मंजूर किया। इस्तीफे की मंजूरी का इतलाक 26 नवंबर से होगा। और अब बात मुशर्रफ केस की। इस्लामाबाद कोर्ट ने संगीन गद्दारी केस का खुसूसी अदालत का फैसला रोक दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को 5 दिसंबर तक गद्दारी केस का नया प्रोसिक्यूटर तैनात करने का हुक्म दे दिया।
चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। एडिशनल अटॉर्नी जनरल साजिद इलियास भट्टी ने खसूसी अदालत की तश्कील का रिकॉर्ड अदालत में पेश किया। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि अक्टूबर 1999 के इक़दामात को भी गैर आईनी करार दे दिया गया। 3 नवंबर की इमरजेंसी का टारगेट अदलिया थी। सेक्रेटरी कानून ने खसूसी अदालत की तश्कील काबीना की मंजूरी से होने का बताया। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि मतलब खसूसी अदालत की तश्कील दुरुस्त है। खसूसी अदालत को ये सारी बातें नहीं बताईं और फैसला रुकवाने यहाँ आ गए। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि क्या खसूसी अदालत ने वीडियो लिंक के जरिए बयान रिकॉर्ड कराने की ऑप्शन दी। वकील ने बताया कि ऑप्शन दी मगर परवेज मुशर्रफ बीमारी के बायस कबूल नहीं कर सकते। दलाइल मुकम्मल होने पर अदालत ने वजारत दाखिला और वकील परवेज मुशर्रफ की दरख्वास्तों को मंजूर करते हुए खसूसी अदालत को संगीन गद्दारी केस का फैसला सुनाने से रोक दिया। अदालत ने वफाकी हुकूमत को 5 दिसंबर तक गद्दारी केस का नया प्रोसिक्यूटर तैनात करने का हुक्म भी दिया। फैसले में कहा गया है कि परवेज मुशर्रफ के वकील समेत तमाम फ्रीकैन को सुनकर फैसला किया जाएगा। और अभी आपको बताएं कि जनरल नदीम रजा ने चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा संभाल लिया। ISPR के मुताबिक इस सिलसिले में ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स में पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। गुज़िश्ता दिनों वज़ीर आज़म ने जनरल नदीम रजा को जनरल ज़ुबैर महमूद हयात की मुद्दत मुलाज़मत मुकम्मल होने के बाद चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बनाने की मंजूरी दी थी और आज उन्होंने ओहदा संभाल लिया। नवाज शरीफ को इलाज के लिए लंदन से अमेरिका भेजे जाने का इम्कान है। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में हुसैन नवाज का कहना था कि उनके ज़ाती ख्याल में नवाज शरीफ को अमेरिका जाकर अपनी मुतादिद बीमारियों का इलाज कराना चाहिए। इस सिलसिले में नवाज शरीफ और दीगर अहल खाना से भी बात की है। मैं तो चाहूँगा जी कि वो अमेरिका में एक ही जो है ना जो स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है वहाँ जाके अपनी जो मल्टीपल एलिमेंट्स हैं वो उनका इलाज करवा सकें। आगे आप देखिए जी। तो आपने इस हवाले से मियाँ साहब से बात की है? वो राज़ी? जी मैंने कई दफ़ा बात की है इस चीज़ को और मेरी यही ख्वाहिश होगी कि वो सारे के सारे जो इशूज़ जो हैं वो एक दफ़ा ही एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अंदर। उनकी क्या राय है इस बारे में? अभी इस वक्त जो है ना प्री मच्योर है कि जो है ना वो राय वो अभी नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी जो है इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं और आगे जो है ना जो सबसे इम्पोर्टेंट है जिसके लिए मैं पूरी कौम से दुआ की दरख्वास्त करूँगा वो उनकी जो बोन मैरो की जो इन्वेस्टिगेशन है सब दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उनको पनाह में रखे। नवाज शरीफ के कल मजीद टेस्ट किए जाएंगे। पेट स्कैनिंग के बाद मालूम हो सकेगा कि उनके प्लेटलेट्स क्यों कम हो रहे हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ नवीद सज्जाद चौधरी से। जी अपडेट कीजिए। जी बहुत शुक्रिया। मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बरतानिया में इस वक्त इलाज की गर्ज से मुकीम है। उनके ज़ाती मुआलिज जो हैं वो उनको मुख्तलिफ हॉस्पिटल जब भी वो जाते हैं तो उनके साथ होते हैं। अलबत्ता जो उन्होंने पहले बात की थी तो उस हवाले से भी उनकी तरफ से ही यही मीडिया को बताया गया था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब का जुमेरात यानी टुमारो जो है उनको हॉस्पिटल दोबारा ले जाया जाएगा और उनके मजीद जो है वो टेस्ट मतवक्के हैं। उनमें ख़ास तौर पर पैट की वो बात कर रहे थे कि PET एक स्कैन है जो उनका किया जाएगा जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकेगा कि प्लेटलेट्स की जो कमी वाकई होती है वो क्यों होती है। नॉर्मली अगर हम देखें जब से मियाँ नवाज शरीफ साहब लंदन आए हैं तो सुबह वो कभी भी निकले, लेकिन आफ्टरनून में जो है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब अपने घर से हॉस्पिटल रवाना हुए तो उनके हमरा जो हैं उनके भाई और उनके ज़ाती मुआलिज डॉक्टर अदनान भी साथ होते हैं। जी LNG स्कैंडल केस में गिरफ्तार साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने ज़मानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर दिया। दरख्वास्त में नैब और सेक्रेटरी कानून को फरीक बनाते हुए मौक़िफ़ अपनाया गया है कि केस के फैसले तक उन्हें ज़मानत पर रिहा किया जाए। इसी केस में साबिक MD PSO शेख इमरान उल हक की ज़मानत गुज़िश्ता रोज़ मंजूर हुई थी। चौधरी शुगर मिल केस में गिरफ्तार साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के भतीजे यूसुफ अब्बास ने जमानत की दरखास्त दायर कर दी। लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरखास्त में नैब को फरीक बनाया गया और मौक़िफ़ अपनाया गया कि 48 रोज़ जिस्मानी रिमांड पर रहे लेकिन एक भी सबूत पेश नहीं किया गया। नैब ने मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम लगाया लेकिन तमाम रकम बैंकिंग चैनल से पाकिस्तान आई और इस पर टैक्स भी दिया। अदालत दरखास्त जमानत मंजूर करते हुए रिहा करने का हुक्म दे। JUI के सीनियर रहनुमा मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह पर कातलाना हमले का मुकदमा थाना सिटी मानसेहरा में दर्ज कर लिया गया है। JUI के जिले अमीर मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह पर हमला। मुफ्ती किफ़ायत इस्लामाबाद से मानसेहरा आ रहे थे कि बेडरा इंटरचेंज पर उनकी गाड़ी को टक्कर मारकर रोका गया। 5 नामालूम नकाबपोश असलहे और लोहे के रॉड्स उठाए हुए थे। पहले मुफ्ती किफ़ायत उनके बेटों और साथियों पर रॉड से हमला किया। सही तफ्तीश होनी चाहिए, जो सही आदमी उस तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने मुफ्ती किफ़ायत पर असले का बोल्ट खोला ही था कि ट्रैफिक रुक गई, जिस पर मुल्जिमान गाड़ी की चाबी लेकर फरार हो गए। जब बात मुफ्ती साहब पे हमले की आएगी
تو ضلع مانسہرہ کا ایک ایک بچہ اس حملے کی رکاوٹ کے لیے اور اس حملے کے خلاف احتجاج کے لیے انشاءاللہ روڈوں پہ اور چوکوں چوراہوں پہ ہوگا۔ حملے میں زخمیوں کو کنگ عبداللہ ٹیچنگ ہسپتال منتقل کر دیا گیا، جبکہ مقدمہ تھانہ سٹی پولیس میں درج کر لیا گیا۔ کراچی گلشن اقبال کے اسپتال میں وارڈ بوائے کی درندگی سامنے آ گئی۔ آئی سی یو میں معذور خاتون سے زیادتی کی کوشش کی، شکایت پر پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ وارڈ بوائے نے اعتراف جرم بھی کر لیا۔ اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں کامران شیخ۔ گلشن اقبال کے رب میڈیکل سینٹر میں معذور خاتون سے زیادتی کی کوشش، سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر لی گئی جس میں وارڈ بوائے کو دروازہ بند کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ متاثرہ خاتون کے شوہر کا کہنا ہے کہ ڈاکٹرز نے کہا ہم مریض کا خیال رکھیں گے، آپ جائیں۔ بیگم نے واقعے سے متعلق بتایا، میری وائف جو ہے وہ ملٹیپل اسکلیروسس جس کو ایم ایس کہتے ہیں اس کی پیشنٹ ہیں اور وہ بالکل ڈسیبل ہیں۔ وہ اتنی ڈسیبل ہیں کہ اس وقت وہ اپنے ہاتھ سے پانی بھی نہیں پی سکتی اور پانی مانگ بھی نہیں سکتی ہیں۔ تو وہاں پہ ان ڈاکٹرز نے کہا کہ جی آئی سی یو کے اندر ان کو داخل کرنا پڑے گا۔ تو ہم نے کہا کہ ہم رک جاتے ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں، یہاں پہ رکنے کی اجازت نہیں ہے کسی کو، تو آپ اپنی وائف کو یہاں پہ چھوڑ دیں، ہم لوگ پوری ٹیک کیئر کریں گے۔ خاتون کی شناخت پر پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ وارڈ بوائے نے اعتراف جرم کر لیا، واقعے کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت پبلک سیفٹی کمیشن کا اجلاس ہوا۔ پولیس فائرنگ سے جاں بحق شہری نبیل سے متعلق کیس پر مشاورت کی گئی۔ پولیس چیف نے بریفنگ دی کہ کیس کی تحقیقات ایس ایس پی انویسٹیگیشن اعجاز احمد کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے پولیس کی تربیت کی ہدایت کر دی، ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ پولیس عوام کی حفاظت کے لیے ہے۔ نئے پاکستان میں بھی بچوں کے ساتھ جنسی تشدد کے واقعات نہ تھم سکے۔ پشاور میں ٹیوشن ٹیچر نے بچے کو بدفعلی کا نشانہ بنانے کے بعد ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کر دی۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا لیکن ملزم قانون کی گرفت میں نہ آ سکا۔ مزید اپڈیٹ کریں گے نمائندہ آج نیوز شہاب الدین۔ جی اپڈیٹ کیجیے۔ جی، خیبر پختونخوا میں بچوں سے زیادتی اور خواتین پر تشدد کے اور اس طرح کے واقعات میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اگر ہم پچھلے 10 مہینوں کا ریکارڈ دیکھیں تو صرف پولیس کے ساتھ 40 خواتین پر تشدد کیا گیا اور 18 کیسز جو ریپ کے کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ آج جو تازہ واقعہ پشاور کے علاقے پشتخرہ میں لخکر خیل گاؤں میں پیش آیا، وہ ایک سٹوڈنٹ کے ساتھ زیادتی کی اور اس کی ویڈیو بنا کر پھر سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا، اور پولیس نے ابھی ملزم کو گرفتار کر کے اس کے خلاف مقدمہ درج کر دیا گیا ہے۔ لیکن اس واقعات کے روک تھام کے لیے پولیس اور انتظامیہ کے